हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। The formation of the sound public opinion. There is a most important topic arrive here. A hindrance in the formation of the sound public opinion. The public opinion will be not be true reflection of the idea of public until their following hindrance are eradicated. The first here, the indifferent attitude. There is a most important here, indifferent attitude. Generally, people like to keep themselves away from the political activity. They do not take interest in the public affair, or generally they think that there is involvement in the political decision and making not required. There is a need to change the indifferent attitude and the adopt a participator's approach. There is a participator's approach here. People should be motivated to be take interest in the affair of their own country. People have to be satirized toward important issue related to the unity and integrated and development of nation. There is a most important indifferent attitude here. The next important here is, let's see here, the education and talented people are expected to the good voters and citizens. Intelligent people, on the other hand, have to the limited knowledge and they do not understand the political problem. They are not capable of forming intelligent and the rational opinion and are the guided by the process of settlement. Ignorance born of the literacy is a course to social life. A sound public opinion can be formulated only in the environment of a knowledge and education. The next here is a C is a poverty. The poor and always is isolated from the politics. They do not find time to revolt. There is attractions to the public affair. They get easily influenced by their tall talk of the political leaders and the car even to the see there the sale there is a votes. The government and non-government organization and pressure group have to play there is an effective role. The wide gaps between the rich and poor has to be minimized and the distribution of the wealth must be equitable and sound and healthy public opinion is possible only by the alternatives poverty. The next here is a disharmony is amongst the various caste and community. There is the most important here, this harmony amongst the various caste and the community. The people and political party in the democracy have to rise above to the feeling and emotion of the casteism and there is a communalism. They should not be divide themselves into the narrow wall of the religion and sect. And religion and political should be keep a separate social harmonies in their country and would be provide to the better platform for the sound and healthy public opinion. And the next year, free press. There is a most important here on basis to object and the independent press and the fairness in the media play of the very significant role in the formation of the healthy opinion. The press should not be influenced by there is a religion, capitalist and the regional interest. Free press should be present the authormatics in the importance and the report. यहाँ पर जो आया है स्वास्थ्य जनमत निर्माण में आने वाली बाधाएं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आया है कि स्वास्थ्य जनमत निर्माण में आने वाली बाधाएं, कहते हैं बहुत से कार्य हैं जिसमें बाधाएं जो होती है एक बहुत बड़ा समस्याएं पैदा कर देती है। बाधाओं इंसान के जो है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो है खत्म कर देती है। कहते हैं जनमत तब तक लोगों के मतों और विचारों का सही प्रतिबिंब नहीं कहलाएगा जब तक कि कुछ बाधाओं का जो है उन्मूलन नहीं किया जाए। यानी कुछ बाधाएं हैं जिसको जो है हटाना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आता है कि बाधाओं में सबसे पहले उदासीन रवैया होती है। आमतौर पर लोग अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखना पसंद करते हैं। ये तो देखने में आपको मिला भी होगा कि यहाँ पर भारत में जो वोटिंग परसेंटेज होती है बहुत ही 60 या 70 के आसपास ही होती है, कभी कभी 50 ही होती है। इससे जो एक बात साबित हो जाता है कि यहाँ के लोगों को इतना इंटरेस्ट राजनीतिक में नहीं रह गया है, क्योंकि उनको पता है कि जिसने अपना अच्छा खासा लालच की जो है पिटारा खोला है उसी की जीत होगी। और इसमें गरीब लोग ये अपना लालच के पिटारा के चक्कर में पड़ के जो है वोट देते हैं। आम बड़े व्यक्ति जो होते हैं इनका ये विचारधारा होता है कि इनको क्या लेना है, यानी उनकी रवैया जो होती है उदासीन होती है। कहते हैं उनका मानना होता है कि राजनीतिक निर्माण में उनका भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। उनके इस जो है उदासीन रवैयों को बदलने और राजनीतिक निर्माण के
निर्माण में भागीदारी बनने की आवश्यकता होती है। लोगों को उनके अपने देश में होने वाली इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसके विकास संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। देखिए, कुछ व्यक्ति होना चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति इसलिए भी नहीं होना चाहते कि उनको ये पता है कि राजनीतिक जो है आजकल साधारण व्यक्तियों का नहीं रह गया है। आजकल कहते हैं जिनके पास बाहुबली होते हैं वही जो है राजनीतिक में अपना पैठ जमा पाते हैं। आम बंदे को राजनीतिक में पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो उनके पास ना तो अधिक पैसे होते हैं और ना लोगों में बांटने के लिए उनके पास कोई धन होता है। तो इसलिए आम बंदा जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। इसमें तो वो व्यक्ति दिखाते हैं जिनके पास काफ़ी धन हो या उनके पास काफ़ी बाहुबल हो, तो वही बंदे जो होते हैं आजकल इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। आम बंदे तो इनसे काफ़ी दूर या बहुत ही दूर रहना पसंद करते हैं। उसके पश्चात है निरक्षरता। देखिए, ये भी बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए कि समाज के शिक्षित एवं प्रबुद्ध लोगों से यह आशा की जाती है कि वो अच्छे मतदाता और नागरिक होंगे। वही दूसरी ओर अशिक्षित लोगों का ज्ञान जो है सीमित होती है और वो राजनीतिक समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, नहीं समझ पाते तो जनरल सी बात होगा कि वो साक्षर नहीं होते हैं। वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण तर्कसंगत तर्क निर्माण करने में समर्थ नहीं होते कि भाई क्या सही और क्या गलत है। यही बात मैं आप लोग को भी समझाने की कोशिश करता हूँ ना कि कभी भी हम ये बात देखते हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी हम जो है अपनी बुद्धिमत्ता का यहाँ उपयोग नहीं करते हैं, अपनी सतर्कता का जो है तर्कसंगता का उपयोग नहीं करते हैं और हम राजनीतिक नेताओं के गलत जो विचारधाराओं में फंसते चले जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो है अशिक्षित होने का प्रमाण है कि हम लोग अशिक्षित हैं और हम लोग को समझ नहीं है कि हमें वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनके लालच में फंस जाते हैं। वे आवेश और भावनाओं में प्रभावित हो जाते हैं और निरक्षरता के कारण पैदा होने वाली अज्ञान समाजी जीवन के लिए अभी श्राप बनता जा रहा है। देखिए, इस बात के लिए मैं भी बहुत मानने में एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी सरकार की भी ये विडंबना है। सरकार भी अनपढ़ बनाए रखने की साजिश चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखोगे कि आज किताब की जो है पढ़ने लिखने की चीज़ जो है इतनी महंगे होते चले जा रहे हैं कि उसका जो है कुछ कही नहीं जा सकती है, लेकिन सरकार जो है जो चीज़ गलत है उन चीज़ों को जो है काफ़ी प्रोत्साहन भी दे रही है। अब इसके बारे में मैं क्या विचारधारा रखूँ, ये भी बहुत बड़ी यहाँ पर जो है विडंबना है। एक स्वास्थ्य जनमत का निर्माण केवल ज्ञान और शिक्षा के वातावरण में ही किया जा सकता है। मैं हमेशा यही बात करता हूँ, तभी मैंने जो है त्रिपाण सिटी सेंटर भी बनाया है कि जनता के सामने जो है आने वाले जो हमारे जनता हैं, जो आने वाले विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अगर वो समझदार बन जाएं तो हमारा देश का कल्याण संभव हो पाएगा। क्योंकि कहते हैं जब तक शिक्षा आपको सही नहीं मिलेगा, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, आप जो हो कभी भी आगे नहीं समझ पाओगे। इसलिए त्रिपाण सिटी सेंटर जो है बीच बीच में आपको उन बातों को भी उजागर करने की कोशिश करता है जो आपके हित में होते हैं। तो इसको कहते हैं अगर कोई सुनता भी है तो उसको गलत न धारणा प्रकट करे उसके, क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं उनको ध्यान दे, ये बहुत बड़ी बात रह जाती है। यदि बात हम करें निर्धनता की, कहते हैं भारत में सबसे बड़ी जो है विडंबना है निर्धनता ही है। निर्धन लोग राजनीति से परे रहते हैं और सार्वजनिक मामलों पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है। वो राजनेताओं की बड़ी बड़ी बातों में आसानी से आ जाते हैं। तो आपने को पता ही है कि बड़ी बड़ी बातें जो है आसानी से आ जाना इनका जो है निर्धनता का सबसे बड़ा कारण बनता है। वो सोचते हैं कि हमें कोई चीज़ फ्री में मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फ्री की चीज़ें नहीं है, उनसे जो है दूसरी तौर से जो है उनसे वसूला जा रहा है। बिना सोचे समझे अपना वोट दे देते हैं तथा कई बार अपने वोटों के बेच भी देते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन में पैसे बांटने की जो समस्या है वो बहुत आम है, दारू बांटने की समस्या जो है बहुत आम है, ठीक है, कपड़े बांटने की समस्या जो है बहुत आम है। कहते हैं बड़े बड़े नेता लोग तो अपने घर तक बेच के भी जो है इलेक्शन लड़ते हैं और एक बार जीत जाते हैं तो फिर वो सारे पैसा एक ही झटके में वसूल लेते हैं। इस प्रकार के मामलों को ध्यान में रखकर सरकार गैर सरकारी संगठनों और दबाव समूह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती भी होगी। निर्धन और धनी के बीच का अंतर को कम किया जाना चाहिए। अंततः संपत्ति के बंटवारे को भी जो है न्यायोचित रूप से किया जाना चाहिए। निर्धनता कम करके ही एक स्वस्थ जनमत का निर्माण संभव हो सकता है। देखिए, जब तक कहते हैं जब तक हम निर्धनता को कम ना कर सके तब तक जो है एक अच्छा स्वास्थ्य जनमत जो है हमारे देश में होना संभव नहीं है। विभिन्न जातियों एवं संप्रदाय के बीच असंतुलन, देखिए ये भी सबसे बड़ी समस्या है। लोकतंत्र में लोगों और राजनीतिक दलों के
जो है जात पात एवं संप्रदाय की भावनाओं के ऊपर उठना चाहिए। उन्हें अपने आप को धर्म एवं संप्रदाय की सक्रिय दीवार के बीच नहीं बांटना चाहिए। धर्म व राजनीति के जो है अलग रखना चाहिए। देश के अंदर सामाजिक समस्या जो सामंजस्य स्वास्थ्य जनमत के निर्माण के लिए एक मंच की आधारशिला रख सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता है कि जब भी इलेक्शन आती है तो हमें जात पात के ऊपर भेदभाव करके वोट देने की आवश्यकता नहीं है। आप वोट उनको दो जो आपके लिए अच्छे कार्य कर रहे हो, जो आपके विचारों के से अवगत हो, आपके जो है सोच पे आधारित हो। ये नहीं कि आपने जाति पे खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति तो उसको वोट दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बात हमेशा याद रखना कि आप भारत के नागरिक हो, कोई जात पात से आप ओतपोत नहीं हो। जात पात कहते हैं तब आता है जब हम समाज में रहते हैं। जब देश की बात आती है तो वहाँ पर जात पात नहीं आती है। वहाँ पर सिर्फ एक ही भावना होता है कि हम एक है और हमें पूरा देश के लिए सोचना है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और यही बात को आपको अपना के आगे बढ़ना भी चाहिए। इससे दूसरा व्यक्ति जो है आपका कभी फायदा नहीं उठा पाएगा। और भारत में जो है इस तरह के जो सांप्रदायिक दंगा फसाद होती है भाषा के ऊपर या जाति के ऊपर, वो कदाचित कभी नहीं हो सकता है। उसके पश्चात है स्वतंत्र प्रेस। देखिए, स्वतंत्र प्रेस पूर्वग्रह से मुक्त और विषयनिष्ठ स्वतंत्र प्रेस तथा हर प्रकार के भय से मुक्त मीडिया एक जो है स्वास्थ्य जनमत की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा सकती है। प्रेस पर धार्मिक पूंजीवादी और श्रेय हित हावी नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र प्रेस के निश्चित और विश्वसनीय ब्यूरो प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बात पुराने समय से जब आज़ाद भारत नहीं हुआ था उस समय प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हर एक व्यक्ति ने जो है अपना विचारधारा रखा था। और कहते हैं प्रेस को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। टेलीविजन समाचार माध्यम को जो है स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। आजकल देखते भी होंगे कि बहुत से टेलीविजन जो है हमेशा ये सुनने को मुझे मिलता है कि ये सिर्फ एक पार्टी के लिए बात कर रही है, एक पार्टी के हित के लिए कर रही है। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ कारण होगा तभी ये बात बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। इसलिए सदैव एक बात ध्यान रखना कि जिस देश का जो है स्वतंत्र प्रेस होगा वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक ही स्थापना होगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि स्वतंत्र प्रेस रहेगा तो वो अपनी विचारधारा जनता के सामने रख सकती है, जनता के जो है विचारों से अवगत हो सकती है। तो इसलिए जो है हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो है प्रेस को स्वतंत्र रखने के लिए ही अग्रसर रहना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप, जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप उसमें जानेंगे कि किस प्रकार जो है राजनीतिक नेता जो है प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करते हैं। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना, वो कई मानने में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।